हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमने अब नियर अबाउट 76 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए और अभी जो ये वाली सीरीज होगी इसमें हम 77 से लेके 125 क्वेश्चंस पूरे प्रैक्टिस करेंगे। जिसने अभी ऊपर वाली सीरीज नहीं देखी यानी इससे पहले की जो सीरीज है वो नहीं देखी, वो जाके देख लो, क्योंकि एक साथ देखने में बहुत बर्डन फील होगा एंड दिमाग में भी नहीं जाएगा कुछ। तो जो है जस्ट मतलब लाइक छोटे छोटे पार्ट्स में करके पहले कंप्लीट कर लो। एग्जाम वैसे भी बहुत नियर अबाउट है तुम सबके, तो स्टार्ट करें सीरीज। 77 कॉम्पिटेंसी मैपिंग लीड्स टू। कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या होती है? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने जॉब्स को लेके ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स एंड ऑल ऐड कर रहे होते हैं। मतलब मुझे अगर किसी एम्प्लॉय को अपने यहाँ लाना है तो मैं क्या करूँगी कि उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन बनाऊंगी उसमें और चीज़ों को डालूंगी, लाइक कि नहीं मुझे ये स्पेसिफिक स्किल चाहिए, मुझे ये वाले टैलेंट अलग, मतलब टैलेंट नहीं मतलब एक स्किल्स में ये और मुझे एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है, उसके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को एक तरह से ऐड ऑन कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं उस जॉब डिस्क्रिप्शन को उस एम्प्लॉय के नहीं, उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए। सो competency mapping leads to upgrading the job description. ऑप्शन ए सही था। 78 Mr. A must decide what position of the firm should be filled in the next 6 months. What activity is Mr. A working on? अगर मिस्टर ए ये डिसाइड कर रहे हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ में हमें कौन सी जॉब पोजीशन फिल करनी है, तो वो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं? तो दैट ही इज मतलब लाइक कि कौन सा वर्क कर रहे हैं? इंटरव्यूइंग, रिक्रूटिंग और पर्सनल प्लानिंग और सिलेक्शन, दैट इज पर्सनल प्लानिंग। 79 manpower inventory involved dash. The classification of characteristic features of manpower inventory क्या होता है तुम्हारा? ये तुम्हारी कैटेगरी होती है जिसमें जनरली क्या होगा, तुम्हारे सारे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं या तुम कह लो एम्प्लॉयज के। ओके, manpower inventory involves the classification of characteristic feature of the classification of the inventory of the worker in an organization in addition to the qualities, the classification of the characteristic of personnel in an organization in addition to the counting their numbers, and the classification of characteristic of manager quality in addition to their number, and the classification of the characteristic feature of function for inventory in addition to the total number of functions. Option number D. No, B. Sorry. Option B होगा. Okay. 80 in which of these forecasting techniques are past staffing levels used to project the future human requirement? इनमें से कौन से में हम forecast करते हैं लाइक जो मेरे past staffing levels है उनको? तो that is time series analysis. 81 which of these is an external sound present in the channel of communication? Channel of communication में इनमें से कौन सा external sound होता है? That is noise, semantic problem, cultural barriers over communication. So that is noise. 82 which of these should not be avoided for effective communication? इनमें से कौन सा हमें avoid नहीं करना चाहिए effective communication के लिए? तो that is noise, planning, semantic problems and the wrong assumptions. So option number B is what? Right, planning. 83 dash are the problem rising from expression. इनमें से कौन सी problem arise होती है through expression? So cultural barriers, semantic problems, wrong assumptions, selecting perceptions. So B, that is semantic problems. Semantic problem में क्या होती है, इसमें हमारे issues create होते हैं just because हम क्या कर रहे हैं, हमारे expressions clear नहीं, हमारे words clear नहीं, हमारे symbols clear नहीं. Okay. 84 both encoding and decoding of the message are influenced by our emotion. जो encoding और decoding है दोनों हमारे emotion से influence होते हैं. True. So option number A. 85 in which of these problem is the actual message lost in the abundance of the transmitted information? इनमें से कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है कि मेरा एक्चुअल मैसेज क्या हो जाता है, खो जाता है बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के बीचेस में, मतलब लाइक इन्फॉर्मेशन के बीच में. तो सिलेक्टिंग द परसेप्शंस, ओवर कम्युनिकेशन, अंडर कम्युनिकेशन एंड फिल्टरिंग. सो ओवर कम्युनिकेशन, जनरली जो लोग ओवर कम्युनिकेट करते हैं वो मेन चीज क्या बताते हैं वो सामने वाले को समझ में नहीं आती, पर बाकी उनकी राम कथा पूरी उनको वो पता चल जाती है. ओके. 86 communication should serve as a conflict reduction exercise. इसमें से communication कैसे serve करेगा as a conflict reduction exercise? So that is also true. I thought यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था क्वेश्चन. ठीक है. 87 dash means to impart the understanding of the message. इनमें से कौन सा
मतलब जो टर्म है वो मीन करता है कि इम्पार्टिंग द मैसेज फ्रॉम द लाइक अंडरस्टैंडिंग। ओके, कि मेरे पास मैसेज आया, अब मैं उसको अंडरस्टैंड कर रही, ठीक है। तो कौन सा है? इनकोडिंग, रिसीवर, डिकोडिंग, दैट इज फीडबैक। तो डिकोडिंग होगा। इनकोडिंग तो स्टार्टिंग में करते हैं जब हम सेंडर के पास जब चैनल को फाइनलाइज कर रहे होते हैं उस टाइम पे कर रहे होते हैं, एंड डिकोडिंग जब रिसीव हो जाता है मैसेज तब होता है। 88 when is the communication process complete? Communication process complete कब होती है? When the sender transmit the message, when the message enters the channel, the message have leaves the channel, और when the receiver understand the message. दी अगर मेरी communication कब complete होगी? जब मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ और तुम्हें समझ में आ जाए। मेरी communication complete नहीं होगी अगर मैं तुम्हें कुछ भी बोलूँ और तुम्हें कुछ भी ना समझ में आए तो। ओके, जो भी रिसीवर है उसे जो चीज समझ में आ गई तो थम्स अप, लाइक इट्स अ वेल एंड गुड कि हाँ ठीक है इसको समझ में आ रहा है, यानी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। नहीं समझ में आ रहा तो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है। 89 डैश इज द फर्स्ट एनिमी ऑफ द कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा एनिमी है कम्युनिकेशन को? तो दैट इज नॉइस। 90 विच ऑफ द दीज मस्ट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा हमें अवॉइड करना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए? तो शेयरिंग ऑफ द एक्टिविटीज, लिसनिंग, एम्बिग्विटी एंड पोलाइटनेस। तो सी एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है? जनरली सिंपल टर्म में बोलो तो कंफ्यूजन। ओके, तुम किसी कंफ्यूजन में जा, मतलब मैं तुम्हें कोई चीज ऐसी बताऊं जो तुम्हें कंफ्यूज कर रही है, तो वो हमें अवॉइड करनी है थ्रू कम्युनिकेशन में, मतलब लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। 91 which of these is not commanded for effective communication? इनमें से कौन सा तुम्हारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए नहीं है? लाइक क्लैरिटी इन लैंग्वेज, ये तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। लिसन पुअरली, होम कम्युनिकेशन स्किल, एडिक्वेट मीडियम। सो ऑप्शन नंबर बी। 92 what are the internal control designed to do? internal control किस चीज के लिए डिजाइन होता है तुम्हारा? only ensure the accurate accounting record, safeguard asset and optimize the use of resources, only safeguard assets and only achieve the maximum revenue. So option number B. 93 which of the following is a not a limitation of controlling? इनमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं कंट्रोलिंग का? तो डिफिकल्टी इन सेटिंग द क्वांटिटेटिव standards, resistance from employees, and ensuring order and discipline, and costly affairs. So option number B. 94 controlling function is on a behavior. कंट्रोलिंग फंक्शन कौन सा बिहेवियर है तुम्हारा? बैकवर्ड लुकिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग है, कौन सा है? जैसे प्लानिंग को हम कहते क्या है? इट इज फॉरवर्ड लुकिंग, हम फ्यूचर की तरफ सोचते हैं। सो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। ऑप्शन नंबर सी। 95 a large company called AS Limited is involved in the assembling of air conditioner. A recent time and motion study that corporation did reveals that on average one worker could install 10 air conditioner in a day. एक कंपनी है एएस लिमिटेड, वो जनरली क्या करती है? असेंबलिंग करती है किस चीज की? एयर कंडीशनर की, उन यानी एसीज की। एंड उन्होंने एक स्टडी की जिसमें बताया गया टाइम ऑन मोशन स्टडी के बेसिस पे कि एक वर्कर जो है क्या कर सकता है? वो एक दिन में एटलीस्ट 10 एसीज कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकता है। तो द टारगेटेड वॉल्यूम ऑफ द कंपनी इज इन अ डे इज असेंबलिंग 1000 यूनिट्स ऑफ एयर कंडीशनर। एंड इसके बेसिस पे, स्टडी के बेसिस पे उन्होंने क्या किया? एक टारगेट सेट किया कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, हमारी कंपनी है, वो एक दिन में एटलीस्ट 1000 असेंबल करेगी एसीज। The company is paying attractive allowances to prevent the workforce turnover and absenteeism. The employees are all content. Even then, the assembling of air conditioner in every day is 800 units only. The figure out the explanation, the corporation compared the actual performance of each worker and discovered through CCTV. इतने सब के बाद वो कंपनी सारी फैसिलिटीज दे रही है, सब कुछ कर रही है, एंड उसके बाद भी जो उनके एम्प्लॉयज हैं वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ 800 यूनिट्स ही इंस्टॉल कर पा रहे एक दिन में, जबकि इनका कितना था? 1000 कर सकते थे। तो इसके लिए इन्होंने चीजों को देखा, चेक किया, कैसे? सीसीटीवी के थ्रू। तो उन्हें पता चला कि लाइक द स्टाफ, सम स्टाफ वर बिजी इन गॉसिपिंग, एंड कुछ स्टाफ इनके क्या कर रहे थे? बिजी थे गॉसिपिंग के लिए। तो आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेज डिस्कस्ड अबव। तो कौन सा फंक्शन हमने लाइक चेक किया ऊपर? प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग। सो कंट्रोलिंग, हमने हमारी जो अभी की परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर किया हमारे प्लान या फिर जो हमने लाइक एक स्टैंडर्ड सेट किया था उससे।
So that's why it's the planning. 96. Which of the following technique is defined as a process of comparing one business process and performance with the industry's best practice from other firms? इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो डिफाइन करती है क्या कि मेरे बिजनेस को मतलब दूसरे बिजनेस के परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कंट्रोल, कॉस्टिंग, बेंचमार्किंग एंड बैलेंस स्कोर कार्ड. तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेंचमार्किंग. 97. What is the process of measuring and monitoring performance, comparing it with the set goal and making course correction known as? तो कौन सी परफॉर्मेंस है जिसमें हम मॉनिटर करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने जो मेरे गोल्स हैं उससे? तो सिंपल है, दैट इज कंट्रोलिंग. 98. Which of the following technique is defined as the process of comparing one business process and performance with the industry's best practice from other firms? I think he repeated it, so that is benchmarking. Next, 99. Identify that which is not a modern technique of controlling. इनमें से modern technique कौन सी नहीं है controlling की? तो ऑप्शन क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेशियो एनालिसिस, मैनेजमेंट ऑडिट एंड ब्रेक इवन एनालिसिस. तो ऑप्शन नंबर डी. एक सेकंड से चेक कर लो. हाँ सही है. 100. द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज. कंट्रोलिंग फंक्शन क्या है तुम्हारा? ये ऊपर से रिपीट हो गया है तो सेम बताया था. बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों लुकिंग होता है. सो सी. 101. आइडेंटिफाई विच इज नॉट द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. इनमें से कौन सा प्रोसेस नहीं है कंट्रोलिंग का? Analyzing the deviation, integrates the employee effort, taking the corrective measures and setting the performance standard. Option number B. ये सारे बाकी तो प्रोसेस है ना उसके कंट्रोलिंग के. 102. The controlling role is carried out by. कंट्रोलिंग रोल कंट्रोलिंग जो होती है वो कौन कैरी आउट करता है ऑर्गेनाइजेशन में? टॉप लेवल करता है, मिडिल लेवल करता है या लोअर लेवल? सो ऑल ऑफ द अबव. कंट्रोलिंग इज नीडेड एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट. कंट्रोलिंग हमें किस लेवल पे रिक्वायर्ड होती है? हर लेवल पे रिक्वायर्ड होती है, तो इसका भी क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव. 104. आइडेंटिफाई विच इज नॉट अ ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग. इनमें से कौन सी ट्रेडिशनल टेक्निक नहीं है कंट्रोलिंग की? तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड मैनेजमेंट ऑडिट. मतलब लाइक ऑप्शन होगा मैनेजमेंट ऑडिट. ओके. 105. Yes, in a logistic company, the tour in charge of each trip in the company is expected to submit a report to the event manager on the completion of every trip. Identify the step of controlling process being described in the above line. जो यश है वो एक लॉजिस्टिक कंपनी रन करता है. ओके. एंड इसमें जो हर ट्रिप का इंचार्ज है वो उससे बोलता है कि लाइक आप ट्रिप के बाद मुझे एक रिपोर्ट सबमिट करोगे हर ट्रिप की. ओके. तो ये कौन सा मतलब लाइक कंट्रोलिंग का प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है? तो सेटिंग अप द स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शन, एनालाइजिंग द डेविएशन. सो ऑप्शन नंबर डी. मतलब लाइक रिपोर्ट्स क्यों ले रहा है? ताकि वो चेक कर सके कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है उनको. ओके. 106. फ्रॉम द अबव डिस्क्रिप्शन अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर. प्रोसेस है किसकी है? कंट्रोलिंग की. ओके. कंट्रोलिंग की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? पहले तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजिंग की. आई एम सो सॉरी. ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं, तो पहला ये हो गया. दूसरा क्या होता है? डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं. थर्ड हम करते हैं क्या? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. एंड फोर्थ रिपोर्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं. तो सी डी ए बी किधर है? सी डी ये रहा. ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा. बार बार बोल रही हूँ प्रोसेस वाले क्वेश्चन पूरे देखना, चाहे ऑर्गेनाइजिंग का हो, चाहे कंट्रोलिंग का हो, चाहे प्लानिंग के हो. जितने भी प्रोसेसेस है उनके सीक्वेंस पे ठाने आएंगे. आज अच्छे से देख के जाना सब. 107. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक. इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक से बिलोंग नहीं करता? तो दैट इज पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट. Which of the following given statement are true and false? इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है वो चेक करो. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में क्या लिखा है? refers to perceived fairness of the amount and allocation of reward among the individuals. And procedural justice में क्या लिखा है? perceived fairness of the process used to determine the perception of the individual. So option number A and B both. दोनों ही सही है.
109 विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप थ्योरी स्टेट दैट लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, इनमें से कौन सी थ्योरी है जो बताती है कि लीडर्स जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं, बनाए नहीं जाते अलग से, मतलब लाइक उनकी जो क्वालिटीज होती है या जो भी उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स होती है वो बाय बर्थ उनके अंदर के वो फीचर्स होते हैं, कह लो तो उनके ट्रेड्स होते हैं। ओके, सिचुएशनल थ्योरी, ग्रेट मैन थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ग्रेट मैन थ्योरी बोलती है कि लाइक जो लीडर्स होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक सर्टेन टाइम के बाद उनके अंदर ये क्वालिटीज आ जाती। एंड तुम्हारी सिचुएशनल थ्योरी क्या होती है कि लीडर को क्या करना है, एकदम रिजिड नहीं होना अपनी चीजों पे, चीजों को फ्लेक्सिबल रखना होता है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन अननोन है। कंटेंट लाइक क्या बोला तो क्या नाम था उस थ्योरी का, कंटीजेंसी थ्योरी जो थी उससे ये सेम ही इसका नाम बस वो कर दे। नेक्स्ट कौन सी इसमें थ्योरी बताई थी? बिहेवियर थ्योरी। इसमें बताया गया जैसे इस थ्योरी में ये इसके अपोजिट है। इसमें हमने क्या बोला? लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। इसमें बोला गया कि कोई भी बाय बर्थ लीडर नहीं होता, ठीक है, उनकी जो क्वालिटीज है और ये सब है वो उन्हें मतलब लाइक रहते रहते इन्वायरमेंट में समझ में आ जाती है, लोगों के बीच में रहने से वो ये चीज क्वालिटीज डेवलप करते हैं। सो लीडर्स आर बेक्ड बोल रही थी, आई एम सो सॉरी। लीडर्स आर मेड नॉट बाय मेड बाय मतलब लाइक कि एनवायरमेंट के उससे होता है, ये नहीं कि पहले बाय बर्थ ही वो हो जाते हैं। ओके, पाथ गोल थ्योरी क्या होती है तुम्हारी? पाथ गोल थ्योरी बताती है कि लाइक लीडर को क्या करना है, जितने ऑब्स्टेकल्स आए उनके सबऑर्डिनेट्स को उनके गोल्स को अचीव करने में उन्हें रिमूव करते चलना है। ओके, नेक्स्ट इज 100 एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन? डेलीगेशन से हमको क्या मतलब, लाइक डेलीगेशन का मीनिंग क्या होता है? Delegation of authority merely means the granting of authority to subordinates to operate within the infinite limit, and delegation of authority merely means the granting of authority to subordinates to operate within the prescribed limit. ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डेलीगेशन में हम कंप्लीटली अलाउ नहीं कर देते कि आप जो मन वो करो। ओके, कंप्लीट डेलीगेशन में हम एक सर्टेन लिमिट तक ही किसी को अलाउ करते हैं किसी भी चीज के लिए। ओके, तो उसके हिसाब से ये वाला सही है। 111 transformational leadership is about to change dash entrepreneurship, that is innovation. 112 at which level of management does the corporate manager operate? इनमें से कौन से लेवल पे कॉर्पोरेट मैनेजर तुम्हारा ऑपरेट करता है? तो मिडिल लेवल, फंक्शनल लेवल, ऑपरेशनल लेवल एंड टॉप लेवल। ऑप्शन नंबर डी। प्लानिंग इज क्लोजली रिलेटेड विद, प्लानिंग किससे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होती है? ऑर्गेनाइजिंग से, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग से या कंट्रोलिंग से? तो दैट इज कंट्रोलिंग, ऑप्शन डी। 114 Naveen, a manager in a multinational organization, he believed that the employees of the company are lazy and do not have much ambition. Naveen can be classed as dash manager based on the perspective Douglas MC George theory. So जो नवीन है उसे रियलाइज हुआ कि उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ही लेजी हैं, ठीक है, और उनका कोई खास एम्बिशन एंड ऑल है नहीं। तो जो ये थ्योरी थी तुम्हारी, इसको हम क्या बोलते हैं? आई थिंक क्या नाम था, हाँ, एक्स एंड वाई थ्योरी। ओके, एक्स थ्योरी तुम्हारी डिटरमाइन करती थी हाइजीन को, एक सेकेंड यार रुको, याद करने दो मेरे को, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है मुझे खुद भी इस पर। एक बार क्वेश्चन पढ़ना था। नवीन इज अ मैनेजर मल्टीनेशनल, ओके ओके, हाँ समझ में आ गया। नवीन जो है वो एक मैनेजर है एंड उसे रियलाइज हुआ कि उसके एम्प्लॉयज क्या करते हैं, बहुत ही लेजी है और काम वाम में उनका कोई खास एम्बिशन नहीं है। ठीक है, आ रहे, काम कर रहे, पैसे मिल रहे, ठीक है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट उन्हें देना ही नहीं है इस चीज पे। तो ये कौन सी थ्योरी है? दैट इज एक्स थ्योरी। ओके, एक्चुअली मैं गलती से रिलेट कर रही थी हाइजीन जो टू फैक्टर्स थ्योरी है उसके साथ इसको। तो एक्स एंड वाई थ्योरी अलग होती है। एक्स थ्योरी वो थ्योरी होती है जिसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज बहुत ही लेजी होते हैं, उन्हें काम वाम करना नहीं होता, वो लाइक ठीक है काम कर रहे, पैसे मिल रहे, बढ़िया। ओके, एंड वाई थ्योरी क्या होती है? वाई थ्योरी में वो लोग, उनके अंदर वो विल होती है कि मुझे नहीं काम करना है, मुझे अपने आप को मतलब लाइक सर्टेन लेवल पे लेके जाना है, मुझे प्रमोशन चाहिए। वो ज्यादा वर्क इसलिए करते हैं ताकि उनकी स्केल बढ़े, उन्हें इंसेंटिव चाहिए इन सारी चीजों को लेके। एंड जब हम एक्स वालों की बात करते हैं तो दे आर लाइक कि ठीक है काम कर रहे हैं, बस हो जाएगा। वो कोई इनके अंदर ऐसी विल नहीं होती उस चीज को परफॉर्म करने की। ओके, आई एम सॉरी, वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी उस पर।
तो एक्स एंड वाई थ्योरी कंफर्म है, एंड किसने दी थी वो भी याद रख लेना, जितनी थ्योरी है, और टू फैक्टर थ्योरी, नीट थ्योरी, ये सारी। ओके 115 which of the following below given statement are true and false? तो आई थिंक ये रिपीटेड था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या था, राइट था। 116 when a manager know the little about the intended goal of the decision and the outcome of the option are unclear, what type of situation are they in? मैनेजर को थोड़ा बहुत सारी गोल्स के बारे में पता है एंड सारी चीजें बहुत ही अनक्लियर है, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था एक टर्म दैट इज एम्बिग्विटी। उसमें क्या होता है, हम थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, कोई चीज हमें ज्यादा क्लियर होती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। 117 हाइजीन फैक्टर आर, ये रही हाइजीन फैक्टर। ये थ्योरी पहले तो किसने दी थी, एक सेकेंड, हेसबर्ग ने दी थी। ओके इसे हम टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं, और इसके टू फैक्टर्स क्या थे, पहला तो हाइजीन, एंड दूसरा मोटिवेशन। ओके ये तुम्हारे काम को लेके, जैसे वर्क कंडीशन और इन सारी चीजों को लेके था। हाइजीन थ्योरी यानी डिससेटिस्फैक्शन की बात करता था, एंड मोटिवेशन तुम्हारी सेटिस्फैक्शन को लेके बातें करता था। ओके तो हाइजीन फैक्टर आर satisfactory factors, maintenance factor, defectors and all of these, so option number B। क्योंकि हाइजीन फैक्टर में जनरली जैसे वर्क कंडीशन के ऊपर तुम्हें वर्क कंडीशन अच्छा नहीं मिल रहा, तुम्हें सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, इन सारी चीजों पे बात होती थी। एंड मोटिवेशन तो तुम समझ रहे हो, मोटिवेशन इज लाइक वर्ड से ही समझ में आ जाता है कि मुझे वर्क कंडीशन अच्छी है, मेरी सेल्फ स्टीम वो हो रही है, मेरा लाइक बाकी मेरे जो गोल्स है वो मैं अचीव कर पा रही हूँ। 118 determining how tasks are to be grouped into grouped as a part at which management function, कौन से मैनेजमेंट फंक्शन में सारी चीजों को हम क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं, तो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। 119 dash influences the mostly on any individual need and want and behavior, कौन सी चीज ऐसी है जो ज्यादा इन्फ्लुएंस डालती है किसी भी इंडिविजुअल के नीड एंड वांट्स पे, तो दैट इज प्रोडक्ट, जेंडर, कल्चर, मार्केटिंग, सो कल्चर। 120 which all of the following are advantages of diversity except, इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है डाइवर्सिटी का, तो increased cohesiveness, increased flexibility, greater openness to the new ideas and increased creativity, so option number A। 121 discrepancy between existing and desired state of affair is called, that is problem। 122 a control system in which the control action is somehow dependent on the output is known as, control system में क्या हो रहा है, मेरा जो output है किसी चीज पे dependent है, तो that is closed loop system, semi closed loop system, open system or none of the above, तो that is closed loop system। 123 what is the term used to describe a situation where the output of a system is affected by the signal that is not externally applied but arises from within the system itself, इनमें से कौन सी टर्म होगी उसके लिए, that is exhaustive system, autonomous system, reactive और dynamic, so autonomous। 124 which of the following event can be forecasted with the help of HRP, HRP की हेल्प से हम कौन से सिस्टम मतलब लाइक इवेंट को फोरकास्ट कर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है, फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, अट्रिशन रेट और द डिसाइडिंग द गोल, सो ऑप्शन नंबर सी अट्रिशन रेट, that is also known as what, employees turnover। Mr. A decide what position the firm should fill in the next 6 months and what is the activity A is working on, ये क्वेश्चन में रिपीटेड है, तो ऑप्शन नंबर क्या सी सही होगा, दैट इज पर्सनल प्लानिंग। ओके
सो थैंक यू सो मच। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर एंड कमेंट करो। ओके, थैंक यू सो मच।